हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट जैनिज़्म। हमने जैनिज़्म की एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी। फिर हमने जैनिज़्म में देखा था कि जो 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनके कौन कौन से सिंबल उनसे एसोसिएटेड है उसके बारे में हमने देखा। इस वीडियो में हम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका जन्म, उनकी शादी कब हुई, उन्होंने जो ग्रेट नॉलेज है कब प्राप्त की, और उनका जो एनलाइटनमेंट मतलब कब हुआ था, और वो कब उनकी मृत्यु हुई थी। इससे ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश। सो महावीर वॉज बोर्न इन 540 BC in the village named Kundagram, which was near Vaishali, which is in Bihar. So he was born in 540 BC in village named Kundagram near Vaishali in Bihar. His father's name was Siddharth, who was the head of Janatrika Kshatriya clan. Janatrika Kshatriya clan, which is under Vaishali, which is under Vajji of Vaishali, and his mother Trishala was the sister of Chetak. She was the sister of Chetak, who was the king of Vaishali. So his father was Siddharth, who was the head of Janatrika Kshatriya clan under Vajji of Vaishali, and his mother Trishala was the sister of Chetak, and Chetak was the king of Vaishali. Mahavir was also related to Bimbisar. How? Mahavir was related to Bimbisar. How? Bimbisar was the king of Magad. So he was related to Bimbisar. How? The Bimbisar, who was the ruler of Magad, he married Chalana. So Bimbisar was married to Chalana, who was the daughter of Chetak. So Chetak, who was the maternal uncle of Mahavir, his daughter Chalana was married to Bimbisar. Now let's talk about Mahavir. Talk about the marriage of Mahavir. So Mahavir was married to Yashoda, who was the daughter of Samarvira king, and they gave birth to a daughter named Anonja Priyadarshini. So they had a daughter named Anonja Priyadarshini, whose husband Jamali became Mahavir's first disciple. So Mahavir was married to Yashoda, who was the daughter of Samarvir king, and together they gave birth to a daughter named Anonja Priyadarshini, and Anonja Priyadarshini's husband Jamali was the first disciple of Mahavir. At the age of 30, after the death of his father, he renounced his family and became an ascetic and proceeded in the search of truth. He was accompanied by Makhali Gosala. But later, due to differences, Gosala left him and founded Ajivika sect. So he left his hometown and his family, and he while leaving, he was accompanied by the person named Makhali Gosala. But due to differences later on which came, he got separated from Gosala, and Gosala left him, and Gosala then founded Ajivika sect. At the age of 42, under a sal tree at Jambika Gram on the bank of Rijupalika river, Mahavir attained Kaivalya. Let me write. At the age of 42, under a sal tree at a place named Jambika Gram, Mahavir attained Kaivalya. Kaivalya is supreme knowledge on the bank of a river named Rijupalika. So you have to remember all these things. From now onwards, he was called Kaivalin. As he attained Kaivalya, he was called Kaivalin. Kaivalin means perfect learned, the one who has learned everything. And he was also called Jina or Jitendriya. Which means the one who conquered his senses. He was also called Nrigrantha, which means the one who is free from all bonds. He was called Arahant,
the one who is blessed one, and he was called Mahavir, which means the brave one, and his followers were named Jan. His followers were named Jan. He delivered his first sermon at a place named Pava to his 11 disciples, who were known as 11 Gandhars or 11 Gandharvas. Later on, he founded a Jain Sangh, Jain commune. Sangh means commune, Jain commune at Pava. At the age of 72, in 468 BC, he passed away at Pavapuri near Bihar Sharif in Bihar. Sudharma was the only one of the 11 Gandharvas or Gandharas who survived after Mahavir's death. So Sudharma was the only Gandhar who survived after his death. सो दिस इज़ इट अबाउट महावीर्स लाइफ. अब इन्हीं बातों को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. सो महावीर का जन्म, भगवान महावीर का जन्म 540 BC में जो कुंडल ग्राम नाम की जगह है वैशाली में, वहाँ पे हुआ था. उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ. जो सिद्धार्थ जो थे वो जनत्रिका जो क्षत्रिय क्लैन थी, ठीक है, उसके हेड थे, जो वैशाली के वज्जी की क्लैन थी, ठीक है. और उसकी माता त्रिशला जो थी वो जो एक चेतक राजा था. चेतक कहाँ का राजा था? वैशाली का राजा चेतक था. वैशाली का राजा था चेतक, ठीक है. उसकी जो बहन थी चेतक की, त्रिशला, वो भगवान महावीर की माता जी थी, ठीक है. महावीर जो है वो बिंबिसार से भी उनका संबंध है. बिंबिसार जो मगध के किंग है उनके साथ भी उनका संबंध है. तो बिंबिसार जिनका शादी चलना से हुई थी, चलना से जिनकी शादी हुई थी, तो चलना जो थी वो चेतक की बेटी थी. तो इस तरह से जो चेतक की बेटी है चलना और त्रिशला के बेटे हैं महावीर, ठीक है. तो इस तरह से वो बिंबिसार से, चलना का शादी किससे हुई है? बिंबिसार से हुई है. तो इस तरह से बिंबिसार से भी महावीर रिलेटेड थे. महावीर की शादी किससे हुई? अब महावीर की शादी किससे हुई है? तो महावीर की शादी हुई यशोदा से. यशोदा कौन थी? वो एक समरवीर राजा की बेटी थी. और उनकी एक बेटी होती है आगे जाके जिनका नाम है अनौंचा प्रियदर्शनी, ठीक है. तो प्रियदर्शनी के साथ उनकी शादी होती है. प्रियदर्शनी के जो हस्बैंड हैं आगे जाके जमाली, ठीक है, वो जाके महावीर के पहले डिसाइपल बनते हैं. मतलब पहले ऐसे इंसान जिनको वो अपना सरमन देते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं. सरमन नहीं, अपना शिष्य बनाते हैं, ठीक है. अब 30 वर्ष की उम्र में जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो महावीर क्या करते हैं? अपना राजपाट छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के एक असेटिक बन जाते हैं, मीन्स एक साधु बन जाते हैं. और वो ट्रुथ की खोज में चले जाते हैं. वो उनके साथ जब वो जा रहे होते हैं तो उनके साथ मकाली गोसल नाम की व्यक्ति भी जाते हैं, ठीक है. पर आगे जाके उन दोनों के बीच में, महावीर और मकाली गोसल के जो आपस के विचार हैं वो नहीं मिलते. तो मकाली गोसल उनको छोड़ देते हैं महावीर जी को, और आगे जाके वो आजीविका सेक्ट है उसको फाउंड करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है. 42 वर्ष की उम्र में महावीर को एक साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष कहाँ पे? जम्बी ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है. मतलब जम्बी ग्राम में एक साल के पेड़ के नीचे महावीर को कैवल्य की प्राप्ति होती है. कैवल्य, ठीक है. तो कैवल्य क्या होती है? सुप्रीम नॉलेज होती है. तो उन्हें जम्बी ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है. और ये साल वृक्ष था कहाँ पे? एक रिवर थी, वहाँ पे एक रिवर भी बहती थी, नदी थी. कौन सी? रिजू पलिका नदी बहती है वहाँ पे, ठीक है. फिर अब जो उन्हें कैवल्यन कहा जाने लगा, क्योंकि उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी तो इन्हें कैवल्यन कहा जाने लगा. उन्हें जीना कहा जाने लगा. उन्हें जितेंद्रिया कहा जाने लगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था. उन्हें नृग्रंथ कहा जाने लगा. क्यों? क्योंकि वो सारी जो बॉन्ड्स हैं उससे फ्री हो गए थे. मतलब अब उनके साथ वो सारे संबंधों से फ्री हो गए थे. उन्हें अरहंत कहा जाने लगा. अरहंत
कहा जाने लगा। अरहंत का मतलब जो ब्लेस्ड वन होता है, जिसे आशीर्वाद मिला हुआ होता है, ठीक है, उन्हें महावीर कहा जाने लगा। महावीर का मतलब जो बहुत ब्रेव हो, ठीक है। उनके फॉलोअर्स को जैन कहा जाने लगा, ठीक है। फिर उन्होंने अपना जो पहला सरमन है वो कहाँ पे दिया था, तो उन्होंने अपना पहला सरमन पावा नाम की जगह पे दिया था, जहाँ उन्होंने अपना सरमन 11 डिसाइपल्स को दिया, 11 जो शिष्यों को दिया था, और इन्हें फिर 11 गंधर्व या फिर 11 गांधार कहा जाने लगा, ठीक है। लेटर ऑन उन्होंने जैन संघ की, जैन कम्यून की रचना की, एक संघ बनाया, जैन संघ बनाया। कहाँ पे बनाया? पावा नाम की जगह पे ही, ठीक है। 72 वर्ष की उम्र में 468 BC में, 468 BC में 72 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? पावापुरी नाम की जगह पे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये जगह कहाँ पे? बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ के नज़दीक है, बिहार में, ठीक है। और सुधर्मा उनकी एक ओनली ऐसे डिसाइपल थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित थे। मतलब उनके सारे डिसाइपल्स और जो थे वो उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी, पर सुधर्मा ऐसे थे जो उनकी मृत्यु के बाद भी काफ़ी मतलब जीवित रहे थे, ठीक है। 11 गांधारों में से एक थे। मतलब अगर हम 11 गांधारों की बात करें तो सुधर्मा वॉज द ओनली वन जो उनकी मृत्यु के बाद जीवित रहे थे, ठीक है। तो ये थी बात महावीर की लाइफ के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।